Hello dear students, welcome to you all in Pawan Wagh Academy. Myself Dhanvantari Deshmukh. Today again we are going to study a subtopic from same chapter, that is reproduction in lower and higher animals. Now, as we are going to study this chapter, here we are studying reproduction, and here we are studying different types of reproduction. Here again we are studying reproductive stages and all that. From today's lecture, here what we are going to do, we are going to study menstrual cycle. Now, what is the purpose behind menstrual cycle and why it is occurring in the female body, that we are going to discuss in our today's lecture. आज हम क्या देखेंगे कि जो रिप्रोडक्शन हो रहा है और वो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो क्यों ज़रूरी है, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर ना हो तो क्या हो सकता है और अगर उसमें कुछ डिस्टर्बेंसेस हो तो क्या हो सकता है, वो भी हम देखने वाले हैं. ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल. नाउ मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक्चुअल मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल हम किसे बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक्चुअल क्या होता है. यहाँ पे क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन. हम सबको एक बात पता है बस, मेंस्ट्रुअल साइकिल मीन्स ऑकरिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रम जिसे हम बोलते हैं. दैट मीन्स व्हाटएवर, अगर हमें इसे डिफाइन करना है मेंस्ट्रुअल साइकिल को, तो हम इसे क्या बोलेंगे, डिस्चार्ज ऑफ. क्या बोलेंगे, डिस्चार्ज. वेट अ मिनट. Whenever we are defining this menstrual cycle, how we are going to define it? Here, whenever the cyclical discharge, okay, now cyclical discharge is occurring here. Of what? Cyclical discharge of blood, mucus, cellular debris, ovum, etc. is occurring through vagina. This is the process known as menstrual cycle. Now, for how many days this cycle is going on? This menstrual cycle, it is of how many days it is of? Generally, it is of 28 days. Generally, it is of 28 days. Now, at which stage this menstrual cycle is going to start? Here, this menstrual cycle is going to start in the female body at the age of puberty. Now, what is mean by the age of puberty in female body? In the female body, the age of puberty means what? Age of puberty means, here we will take here again, see, age of puberty means what? Puberty.
Again, here we are going to talk about females. Here, attaining sexual maturity. Okay, now what does mean by puberty? Attaining sexual maturity. It is known as puberty. And here, whenever the sexual maturity is attained, now how it is indicated? Whenever first menstrual cycle starts, first menstrual cycle, it is known as menarche. When first menstrual cycle starts, that process is known as menarche. Now this menarche, what is that? It is starting of first menstrual cycle. What is it? It is starting of first menstrual cycle. Now again, at what age this menstrual cycle is going to start? This menstrual cycle starts at the age of 13 to 15. Okay? Starts at 13 to 15 years of age. All the points are required here. Okay? तो ये सारे पॉइंट्स बहुत ही जरूरी है. देखिए, मैं अगेन एक बार आपको बोलती हूँ, क्या है प्यूबर्टी? मतलब अटेनिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी. और उसके बाद ये जो फीमेल्स हैं उनमें सेक्सुअल मैच्योरिटी वो कब अटेन करते हैं या फिर वो कैसे पता चलता है? तो व्हेनेवर फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल विल ऑकर, उसे एक बायोलॉजिकल टर्म है, वो टर्म है मेनार्च. मेनार्च मतलब क्या है? स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल. वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम क्या बोलते हैं? मेनार्च. और ये स्टार्ट कब होता है? फीमेल्स का 13 to 15 एज हो, उस एज में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है. अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो एंड कब होगा उसे बोलेंगे, बायोलॉजिकल टर्म है मेनोपॉज. मेनोपॉज एक बायोलॉजिकल टर्म है जिसे कहा जाता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का टर्मिनेशन स्टेज. उस टर्म को हम बोलते हैं मेनोपॉज. यहाँ पे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टॉप हो जाती है और उसका एज क्या होगा? ओके, हियर एंडिंग ऑफ menstrual cycle. इसका मतलब है मेनोपॉज. और वो कब होता है? एट द एज ऑफ 42, 47 or sometimes it goes up to 50 also. Okay, this we have seen about menstrual cycle. मैं एक बार वापस बोलती हूँ. देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हमने पढ़ा. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब एक मेंस्ट्रुएशन जो एक डिस्चार्ज है
और वो डिस्चार्ज किस रूप में होता है? वो डिस्चार्ज है ब्लड। डिस्चार्ज में क्या क्या होता है? कंटेंट्स क्या क्या है डिस्चार्ज के? ब्लड है, म्यूकस है, उसके बाद सेल्यूलर डेब्रिस है, उसके बाद ओवम है। ये सारी चीजें जो डिस्चार्ज होती है, कहाँ से? थ्रू दी फीमेल वजाइना। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्यों है? किसके लिए ये हेल्प करता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल हेल्प्स फॉर कीपिंग प्रेगनेंसी, ओके, and that is the main role of menstrual cycle. And this menstrual cycle is acting according to, किसके अकॉर्डिंग से ये चलता है? यूटेरस और ओवरी। ओवरी में अलग हार्मोन्स काम करेंगे, यूटेरस में अलग हार्मोन्स काम करेंगे, और ये हैंड इन हैंड प्रोसेस है, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। और उस वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है। अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये कितने डेज का होता है? एक जनरल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो है 28 दिनों की, 28 डेज की जनरल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। वो आगे कभी 30 डेज की भी है और लास्ट में वो 35 डेज की भी हो सकती है। 28 नॉर्मल है, 28 नॉर्मल साइकिल है, या फिर और 30 to 35 डेज भी हो सकते हैं, ओके। और 30 to 35 डेज भी इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के हो सकते हैं। और आगे हमने देखा ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है अब वो स्टार्ट कब होता है? अगर इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टार्ट होना है तो अगेन एक स्पेसिफिक एज लगेगा, या फिर स्पेसिफिक सिंबल जो बॉडी दिखाएगी उसे हम क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी। और इस प्यूबर्टी को क्या बोलते हैं? अगेन क्या होता है एक्चुअल इस प्यूबर्टी में? अटेनिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी। मतलब यहाँ पे क्या है? दोज फीमेल्स which are attaining sexual maturity they are able to reproduce now, okay, उसे हम बोलते हैं प्यूबर्टी। अब प्यूबर्टी जो है, प्यूबर्टी के वक्त आफ्टर अटेनिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसे हम क्या बोलते हैं? मेनार्ज। क्या बोलते हैं उसे हम? मेनार्ज। मतलब क्या? स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट कब होता है? एट द एज ऑफ 13 to 15, एट द एज ऑफ 13 to 15 ईयर्स ऑफ फीमेल। क्या होता है? मेनार्ज, मतलब स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसके बाद होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट तो हो गई है बट वो एंड कब होने वाली है? तो वो एंड होगी एट द एज ऑफ 40 to 50 ईयर्स। और हम कभी कभी ये भी बोल सकते हैं किसी किसी में 45 to 50 में भी एंड होता है, बट जनरली 40 to 50 ईयर्स। अब अगेन ये जो मेनोपॉज है, मेनोपॉज में हम इसे क्या बोलते हैं? मेनोपॉज मीन्स whatever things which are given out in a cyclical discharge, वो क्या होगा? उसमें पॉज हो जाएगा या फिर वो एंड हो जाएगा। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब आगे देखते हैं। ये तो हमने देखा एजेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। अगेन ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कब स्टॉप होता है? मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टॉप कब होगा? When the menstrual cycle will not occur. See now. When the menstrual cycle will not occur, या फिर वो मेंस्ट्रुअल साइकिल कब एब्सेंट होती है? तो अगेन वो कब एब्सेंट होगी? फर्स्ट बिफोर मेनार्च, या फिर बिफोर
प्यूबर्टी। ओके, 3 कंडीशंस में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा। उसमें से फर्स्ट कंडीशन है बिफोर प्यूबर्टी, दूसरा कंडीशन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके, और तीसरा कंडीशन है आफ्टर मेनोपॉज। ये जो 3 कंडीशंस है, इसमें क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो एब्सेंट होगा, वो नहीं होगा। अब बिफोर प्यूबर्टी मतलब व्हाट एज, 0 to 13 years ऑफ एज। ओके, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के लिए तो कोई एज नहीं होगा। उसके बाद आफ्टर मेनोपॉज, आफ्टर मेनोपॉज मतलब व्हाट वी कैन से at the age of 50 up to death। ओके, तो ये जो 3 कंडीशंस है, ये 3 कंडीशंस में क्या हो सकता है, मेनोपॉज एब्सेंट में, नॉट मेनोपॉज, मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट है। अब हमने देखा बिफोर प्यूबर्टी मतलब 0 to 13 ईयर्स, यहाँ पे आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल होता हुआ नजर नहीं आएगा। उसके बाद आफ्टर मेनोपॉज 50 ईयर्स से आगे डेथ होने तक मेनोपॉज होता हुआ नजर नहीं आएगा। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मतलब, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मतलब ये टाइम पीरियड हम कैसे डिसाइड करेंगे, ड्यूरिंग जेस्टेशन पीरियड, ड्यूरिंग जेस्टेशन पीरियड। अब ये जो 3 कंडीशंस है, इसमें क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन इज एब्सेंट। ओके, दैट साइक्लिकल डिस्चार्ज इज एब्सेंट। यहाँ पे वो साइक्लिकल डिस्चार्ज नजर नहीं आएगा। अब आगे देखते हैं। अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसमें आपको दिखेगा कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो क्या करने वाला है, अलग अलग फेजेस में से जाएगा। उसके अलग अलग डिफरेंट फेजेस है। अब ये जो फेजेस है, वो फेजेस कैसे रहेंगे, एक के बाद एक का क्या आएंगे, यहाँ पे अभी फेजेस आएंगे। और जैसे कि आपने अभी देखा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है, यहाँ पे डिफरेंट फेजेस भी है। तो फर्स्ट वाला फेज, उसे हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट फेज, वो है मेंस्ट्रुअल फेज। फर्स्ट वाला फेज है मेंस्ट्रुअल फेज। दूसरा फेज है प्रोलिफरेटिव फेज। और फिर तीसरा फेज है, देखिए ये सारे जो है ये कौन से है, फेजेस है, किसके, मेंस्ट्रुअल साइकिल के। उसके बाद है ओव्यूलेटरी फेज, और उसके बाद आता है फोर्थ वाला ल्यूटियल फेज। अब ये जो सारे फेजेस है, ये अगेन, वेट अ मिनट, यहां पे ओके। अब अकॉर्डिंग टू डिफरेंट फेजेस, इन फेजेस के अनुसार
जो ओवम है, अभी यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले हैं कि एक तरफ हमें क्या देखना है, यूटेरस, और दूसरी तरफ हमें क्या देखना है, ओवर। ओवरी और यूटेरस और ओवरी, यहां पे क्या हो रहा है, और उसके साथ ही हमें और एक चीज देखनी है, वो क्या है, हार्मोन एक्शन। हार्मोन एक्शन, और यह हार्मोन एक्शन किस वजह से हो रहा है और क्या चाहिए यहां से हमें, फॉर ओवम्स डेवलपमेंट एंड प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, देखिए हमें यहाँ पे दो जगहों पे ध्यान रखना है। कौन सी दो जगहें हैं यहाँ पे, एक तो है, वेट अ मिनट, यहाँ पे एक है यूटेरस और दूसरा है ओवरी, और ये दोनों जगहों पर क्या चल रहा है, एक साथ डेवलपमेंट हो रही है। और यहाँ पे ये जो है, ये है ओवरी, यहाँ पे ये है ओवरी, और यहाँ पे आपको दिखेगा यूटेरस। ओके, और यहाँ पे यूटेरस में भी डेवलपमेंट चल रहा है यहाँ पे, और ओवरी में भी डेवलपमेंट चल रहा है। ओवरी में क्या हो रहा है, प्रीमोर्डियल जर्म फॉलिकल, और वहां से जाएगा प्राइमरी फॉलिकल। देखिए, प्रीमोर्डियल जर्म फॉलिकल, फिर प्राइमरी फॉलिकल, उसके बाद आएगा सेकेंडरी फॉलिकल, फिर उससे आएगा सेकेंडरी फॉलिकल। कहाँ पे ग्रो होगा, ग्राफियन फॉलिकल में। ग्राफियन फॉलिकल का आगे जाके क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम, और बाद में कॉर्पस अल्बिकन्स। ओके, ये सारी चीजें कहाँ हो रही है, ओवरी में हो रही है। और उसके साथ ही यूटेरस में क्या होने वाला है अभी, ये अलग अलग स्टेजेस में। यहाँ पे कल के लेक्चर में जो हमने देखा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, यूटेरस के बारे में हमने पढ़ा था। यूटेरस में हमने मेन चीज क्या देखी थी कि यहाँ पे इसका जो वॉल है यूटेरस का, उसकी विड्थ बढ़ती है, वो थोड़ा मोटा होता है। और यहाँ पे हमने क्या देखा था कि लेयर्स है, यहाँ पे क्या बढ़ेगा, पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम वो तो वैसा ही रहेगा क्योंकि वो पहले से है। तो यहाँ पे अब क्या बढ़ने वाला है, मीजोमेट्रियम जो है, मीजोमेट्रियम वो भी नॉर्मल ही रहेगा। बढ़ेगा किसमें, बढ़ेगा क्या, यहाँ पे ये जो है, ये क्या है, एंडोमेट्रियम। यहाँ पे अब इस यूटेरस में क्या होगा, ये जो एंडोमेट्रियम है, ये जो लेयर थी, ये पहले, अगर पहले हम बोल सकते हैं इसे, वेट अ मिनट, अगर हम बोले कि पहले ये लेयर इतनी ही थी, ओके, पहले ये लेयर इतनी ही थी, बट बाद में क्या हो जाता है कि ये वाली जो लेयर है वो बढ़कर कहाँ जाएगी, बढ़कर ज्यादा हो जाएगी। और जब इसकी विड्थ देखिए, पहले तो ये इतना ही था, फिर बाद में वो क्या हो गया, वो इतना मोटा हो चुका है। फिर यही डेवलपमेंट कहाँ होगी, यूटेरस में, और ओवरी में इस ओवम की डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। ओके, ये सारी चीजें कहाँ पे दिखेगी आपको, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान।
और ये सारी जब यूटेरस में डेवलपमेंट हो रहा है और ओवरी में भी डेवलपमेंट हो रहा है, दोनों का डेवलपमेंट हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है? हार्मोन एक्शन की वजह से। और ये सारी चीजें जो हो रही है यहाँ पे, वो किस लिए हो रही है? ओवम के डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पे ओवम के डेवलपमेंट के लिए क्या हुआ कि प्रीमोर्डियल जर्म सेल से वो सेकेंडरी फॉलिकल में गया, और सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर आपने देखा है कि ओवम की ग्रोथ हो रही है, और फिर ओवम की ग्रोथ होते हुए आगे क्या हुआ? एट द 14th डे वो जो ओवम है वो रप्चर हुआ, जो सेकेंडरी फॉलिकल है या फिर ग्राफियन फॉलिकल जिसे हम बोल रहे हैं, वो रप्चर हुआ और उसके अंदर से ओवम बाहर आया। ये जो हुआ ये किस में हुआ? ओवरीज में हुआ। साथ ही यूटेरस में उसी वक्त क्या हो रहा है कि यहां से रप्चर होने के बाद जो ओवम आने वाला है वो डायरेक्टली एंटर करने वाला है यूटेरस में, और यूटेरस में एंटर करने के बाद उसे वहां जाके रुकना है, उसे थम जाना है वहां जाके। तो अगर रुकेगा तो उसे एक प्लेस चाहिए, तो वो गद्दी के जैसी एक प्लेस वहां बनाई जा रही है। और वो जो गद्दी के जैसी प्लेस है, जैसे हम एक नया बच्चा हमारे घर में आने वाला होता है तो हम एक सारी रूम सजा के रखते हैं, उसी तरह अब यहाँ पे यूटेरस वो काम कर रहा है। अब यूटेरस उस एग को यहाँ लाने के लिए, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि यूटेरस को पता है कि वो राह देखता है कि शायद एग यहाँ पे आ जाए, फर्टिलाइज एग आ जाए या फिर जाइगोट आ जाए और यहाँ जाके यहाँ आके इम्प्लांट हो जाए। और उस इम्प्लांटेशन के प्रोसेस के लिए उसे क्या लगेगा? ये वाली जो एंडोमेट्रियम की लेयर है या फिर यूटेरस की लाइनिंग है वो ज्यादा मोटी होनी चाहिए, उसकी विड्थ ज्यादा होनी चाहिए। तो वो विड्थ अगर उसको बढ़ानी है तो उसे क्या करना पड़ेगा? ये एंडोमेट्रियम की जो लेयर है उसके ऊपर सेल का डिवीजन होगा और यहाँ पे ज्यादातर सेल आके रुक जाएंगे, वो लेयर थोड़ी मोटी सी हो जाएगी। तो ये सारी चीजें किस लिए हो रही है? यहाँ पे ओवम का डेवलपमेंट हो रहा है और यहाँ पे प्रेगनेंसी के प्रोसेस के लिए हो रहा है। तो ये दोनों के अंदर जो प्रोसेसेस हो रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके। और अगर ये सारी प्रोसेसेस ना होती तो क्या होता? अलग अलग डिस्टर्बेंसेस फीमेल रिप्रोडक्टिव लाइफ में आते हैं। ओके। अब आगे हम एक के पीछे एक 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 फेज देखते हैं, हर एक फेज में क्या होता जा रहा है वो हम देखेंगे। अब मेंस्ट्रुअल फेज है। मेंस्ट्रुअल फेज और एक बात देखिए, अब हम मेंस्ट्रुअल फेज से मतलब देखिए, अगर समझो ये है हमारा ग्राफ, तो यहाँ पे हम वेट देखिए, अगर ये है ग्राफ, अगर यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? ये जो ग्राफ है और यहाँ पे हमें दिख रहा है अभी ये फर्स्ट डे है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। ओके। और ये है लास्ट डे मतलब 28 डे है। अब यहाँ पे हमें क्या दिखेगा? स्टार्टिंग हम कहाँ से कर रहे हैं? मेंस्ट्रुअल फेज से। मेंस्ट्रुअल फेज। अब मेंस्ट्रुअल फेज कब तक जाएगा? 1st to 5 डे, 1 से लेकर 5वें दिन तक मेंस्ट्रुअल फेज में होगा। अब ये मेंस्ट्रुअल फेज कहाँ तक है? 1 से लेकर 5वें दिन तक। और फिर बाद में आएगा 6 से लेकर 14वें दिन तक, और 14th डे पे क्या होगा? ओव्यूलेशन। इसे हम बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे? ओव्यूलेटरी फेज। ओके, इसे हम बोलेंगे ओव्यूलेटरी फेज। और आगे जाकर फिर 15वें दिन से 28 दिनों तक उसे हम क्या बोलेंगे? ल्यूटियल फेज। ये वाला जो है उसे हम बोलेंगे ल्यूटियल फेज। ओके, ये हुआ मेंस्ट्रुअल फेज, यहाँ पे हुआ ओव्यूलेटरी फेज। और ये वाला जो 6 से लेकर 13 डे वाला, 6 से लेकर 13 डे वाला फेज है उसे हम बोलेंगे प्रोलिफरेटिव फेज। ये कौन सा फेज है? प्रोलिफरेटिव फेज है। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वाला फेज। फर्स्ट वाला फेज कौन सा है?
मेंस्ट्रुअल फेज, जो 1 से लेकर 5वें दिन तक होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, इसे हम क्या बोलेंगे, इट इज द फर्स्ट डे ऑफ साइकिल। ओके, मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल डे फर्स्ट फेज जो है वो स्टार्ट कैसे होता है, फर्स्ट डे ऑफ साइकिल, एंड फॉर हाउ मेनी डेज इट लास्ट, it lasts for 5 days। ये कब तक चलेगा, ये चलेगा 5 दिनों तक। ओके, और यहां पे क्या होता है, मेंस्ट्रुम इज डिस्चार्ज, मेंस्ट्रुम इज डिस्चार्ज्ड। यहां पे मेंस्ट्रुम जो है वो डिस्चार्ज होगा। अब उस मेंस्ट्रुम में क्या क्या होता है ये तो मैंने आपको बोला है पहले, क्या क्या होता है। सबसे पहली बात यहाँ पे क्या होगा, ब्लड होगा, कुछ डिजेनरेटेड सेल्स होंगे, म्यूकस होगा, उसके बाद ओवम होगा। तो ये सारी जो चीजें हैं ये कंटेंट है उस मेंस्ट्रुम का, जो which is given out through the vagina, and this is seen in the menstrual phase। और ये जो फेज है ये कब होगा, एट द फर्स्ट डे ऑफ साइकिल। यहां से हम साइकिल को स्टार्ट करेंगे। ओके, और इस मेंस्ट्रुम के डिस्चार्ज में यहाँ पे इस प्रोसेस में ओवम, और अगर ये ओवम जो होता है मेंस्ट्रुअल फेज में जो ओवम होता है वो कैसे होता है, मेन बात ये इंपॉर्टेंट थिंग है, हो सकता है ये सीईटी के क्वेश्चन में आ जाए। तो मेंस्ट्रुअल फेज में जो ओवम रहेगा वो कैसा होगा, अनफर्टिलाइज्ड ओवम रहेगा। अनफर्टिलाइज्ड ओवम इज गिवन आउट, या फिर हम बोल सकते हैं थ्रोन आउट। ओके, इस प्रोसेस को फिनरल ऑफ ओवम भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ओवम है वो फर्टिलाइज हुआ ही नहीं, और फर्टिलाइज ना होते हुए उसे बाहर निकाल दिया गया है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, वो फिनरल ऑफ क्या बोलते हैं, ओवम। ओके, अब आगे जाके ये फेज में तो आपको समझ में आ गया कि ये फर्स्ट डे ऑफ साइकिल है। उसके बाद ये कब तक रहेगा, कितने दिनों तक चलेगा, 5 दिनों तक चलेगा। उसके बाद इसे हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुम बोलते हैं, बायोलॉजिकल टर्म, इसे हमेशा याद रखिएगा, इसे हम मेंस्ट्रुम बोलते हैं। और ये जो मेंस्ट्रुम है उसके अंदर क्या होगा, मेन चीज वो मेंस्ट्रुम के अंदर क्या होगी, अनफर्टिलाइज्ड ओवम। मेंस्ट्रुम के अंदर जो भी ओवम होगा जो बॉडी से, फीमेल बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है वो अनफर्टिलाइज एग होगा, वो फर्टिलाइज एग नहीं होगा। ओके, तो ये हमने देखा मेंस्ट्रुअल फेज में। और यहाँ पे जो हमने ये डायग्राम बनाया है, ट्री डायग्राम बनाया है, उसमें हमने क्या देखा है कि फर्स्ट टू 28 डेज का साइकिल जो होता है, और वो 28 डेज की साइकिल में फर्स्ट टू 5th डे तक हमने क्या देखा, मेंस्ट्रुअल फेज देखा, जहां पे मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज होता है। उसके बाद हमने 6th से लेकर 13 डे तक दूसरा फेज देखा, ये वाला था, ये फर्स्ट फेज था, ये वाला देखिए, ये वाला था, ये फर्स्ट फेज था, ये वाला था, ये सेकंड फेज था, ये वाला था, ये थर्ड फेज था, और ये वाला जो था ये 4th फेज था। और यहाँ पे इसे हमने क्या कहा है, मेंस्ट्रुम। आ गई ये बात समझ में आप लोगों को। और ये साइकिल टोटल कितने डेज की है, देखिए ये मेंस्ट्रुअल फेज है, यहाँ से यहाँ तक 6 to 13 तक कौन सा है, प्रोलिफरेटिव फेज। उसके बाद इज ओनली 14 डे का ओव्यूलेशन, और 15 to 28 डेज वाला है ल्यूटियल फेज। आ गई ये बात आप लोगों को समझ में। अब वापस आगे जाते हैं,
आगे का फेज देखते हैं अब, फॉलिक्यूलर फेज। ओके, अगेन देखिए यहाँ पे हमने देखा ये वाला कौन सा था, प्रोलिफरेटिव फेज, या फिर इस प्रोलिफरेटिव फेज को हम क्या बोल सकते हैं, इसका दूसरा नाम है फॉलिक्यूलर फेज। इसे हम फॉलिक्यूलर फेज के नाम से भी जानते हैं। अब देखते हैं फॉलिक्यूलर फेज, इसे दूसरा नाम क्या है, प्रोलिफरेटिव फेज, या फिर इसे और एक नाम से भी जाना जाता है, उसे बोलते हैं प्री ओव्यूलेटरी फेज। प्री ओव्यूलेटरी फेज भी इसे बोलते हैं। देखिए फॉलिक्यूलर, अगेन देखिए इस नाम से ही पता चलता है हमें, फॉलिक्यूलर मतलब क्या, यहाँ पे फॉलिकल्स ग्रो होने वाली है। दूसरा क्या है, प्रोलिफरेटिव, प्रोलिफरेट, इसका मीनिंग क्या होता है, प्रोलिफरेट मतलब किसी चीज का ग्रो होना या फिर वो बढ़ना, मतलब हम जैसे बोलते हैं ना कि प्लांट्स आर प्रोलिफरेटिंग, मतलब वो बढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो या फिर हम ब्लूमिंग बोलते हैं उसे, तो यहाँ पे क्या होगा, उसका प्रोलिफरेशन होगा, वो बढ़ेंगे यहाँ पे। और उसके बाद प्री ओव्यूलेटरी फेज भी हम उसे बोलते हैं। प्री ओव्यूलेटरी क्यों बोलते हैं हम इसे, क्योंकि ये जो फेज है वो कौन सा है, ओव्यूलेशन के पहले वाला, 6 से लेकर 13वें दिन तक जो फेज है उसे हम फॉलिकल या फिर प्रोलिफरेटिव या फिर प्री ओव्यूलेटरी फेज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वो ओव्यूलेशन के पहले वाला फेज है। आ गया ये समझ में। अब आगे यहाँ पे होने क्या जा रहा है, ये कौन सा डे है, इट लास्ट फ्रॉम 6th to 13th days of cycle। ये कहां से कहां तक होता है, 6 से लेकर 13 डे ऑफ साइकिल। अब यहाँ पे होने क्या वाला है, ओके। अब मेंस्ट्रुअल फेज में क्या हुआ है, मेंस्ट्रुअल फेज में जो ओवम था, जो अनफर्टिलाइज था, वो ओवम तो चला गया, उसके साथ जो यूटेरस था, यूटेरस के अंदर जो वॉल, उसकी जो लाइनिंग थी, इनर लाइनिंग जो मोटी हो गई थी, वो भी उसके साथ निकल गई। अब वापस ये हो सकता है कि उस ओवरी को भी नया एग बनाना है, और उसके साथ जो यूटेरस है, जिसकी लेयर जो मोटी बनाई थी उसने, ताकि उसे लग रहा था कि जाइगोट आके वहां पे रुक जाए, बट वो जाइगोट रुका नहीं, इसलिए क्या हुआ कि वो जो लेयर है वो लेयर भी डिजेनरेट हो गई, वो भी चली गई, साथ में ही ओवरी से जो ओवम निकल के आया था वो भी चला गया। तो अब ये साइक्लिकल प्रोसेस है। तो अगेन नेक्स्ट मंथ तक भी क्या होने वाला है, ये जो 6 से लेकर 13 डे तक अगेन एक नया क्या तैयार होगा। अब ये वाला फेज है, इस फेज में नया जो लाइनिंग है यूटेरस का, वहां पे वो वापस वहां के जो सेल्स है वो प्रोलिफरेट होने वाले हैं, वो बढ़ेंगे, और जो ओवरीज के अंदर फॉलिकल्स है वो फॉलिकल्स भी बढ़ेंगी। दोनों तरफ प्रोसेस जा रहा है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के वक्त, यूटेरस में भी प्रोसेस होता है और ओवरीज में भी प्रोसेस होता है। अब ओवरीज यहाँ पे क्या होगा, ओवरीज में समझो ये है ओवरी, और अब इस ओवरी में क्या हो रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ जो एग था, वो जो यहाँ पे यहां से एग चला गया था और वो डिजेनरेट भी हो गया, बट अभी नेक्स्ट वापस क्या होने वाला है, यहाँ पे नए एग का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे नए एग का फॉर्मेशन होगा सेकेंडरी oocyte, या फिर हम जिसे बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल को ग्रो होने के लिए तो सबसे पहले अभी अगेन क्या होने वाला है, जो प्रीमोर्डियल फॉलिकल का ग्रोथ तो पहले से हो चुका है, फिर आगे उसका प्राइमरी और सेकेंडरी फॉलिकल, ये दोनों प्राइमरी फॉलिकल
और सेकेंडरी फॉलिकल, ये दोनों की ग्रोथ होगी। उसका क्या होगा, यहाँ पे प्रोलिफरेशन होगा। कहाँ पे, ओवरीज में। ओवरीज में प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल में जाएगा। सेकेंडरी फॉलिकल को हम क्या बोल रहे थे यहाँ पे, ग्राफियन फॉलिकल। और इसकी ग्रोथ हो जाएगी और बाद में क्या होगा यहाँ पे, आगे ओव्यूलेटरी फेज में उस ग्राफियन फॉलिकल में जो ओवम पाया जाता है या फिर ग्राफियन फॉलिकल से जो ओवम मिलेगा उससे क्या होता है, उससे यहाँ से रप्चर कर दिया जाता है। ओके, तो ये हमने देखा फॉलिकुलर फेज में ओवरीज में क्या चल रहा है। अब देखते हैं यूटेरस में क्या चल रहा है। अब यूटेरस में ओके, अब देखते हैं यूटेरस में क्या हो रहा है। यूटेरस में ये वाली जो लाइनिंग है यूटेरस की जो लाइनिंग है, ये लाइनिंग क्या बढ़ेंगी, ये वाली जो लाइनिंग है ना इसकी, ये वाली, यहाँ पे क्या होगा, ये सारा मोटा हो जाएगा। ये वाला जो लेयर है, ये वाला लेयर, ये, और इसकी विड्थ इतनी बढ़ जाएगी। ओके, और फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो ओवम है यहाँ से आया हुआ, ये यहाँ पे रुक के यहाँ पे इम्प्लांट हो जाएगा। बट क्या हो रहा है यहाँ पे अभी, डेवलपमेंट फॉलिक्यूलर फेज में बस क्या हो रहा है, यहाँ के जो सेल्स है, यहाँ वाले जो सेल्स है वही बढ़ रहे हैं। यहाँ पे सेल्स आके रुकेंगे। ये जो सेल्स है ये क्या फॉर्म करेंगे, एंडोमेट्रियम की लेयर को फॉर्म करेंगे। और ये जो सेल्स है उनका क्या होने वाला है, अभी फॉलिक्यूलर फेज में प्रोलिफरेशन इनका हो रहा है। इसमें ये सेल्स बढ़ रहे हैं। ओके, इन सेल्स का बढ़ना, इसी फेज को हम क्या बोलते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज। ओके, और यहाँ पे जो हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, फॉलिक्यूलर फेज, मतलब फॉलिकल्स में डेवलपमेंट हुआ। आगे आपको ये सारी बात समझ में आगे। अभी इसमें और क्या होने जा रहा है, ये तो आपको समझ में आ गया कि यूटेरस will increase in endometrium layer। ओके, और ओवरीज में क्या होगा, ओवरीज will develop, what they are going to develop, they are going to develop primary follicle and secondary follicle. That means they are helping for the growth of ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल आ गई ये बात समझ में। ये सारी चीजें किसमें देखी हमने, फॉलिक्यूलर फेज में। और इस फॉलिक्यूलर फेज को अगेन प्रोलिफरेटिव और प्री ओव्यूलेटरी फेज के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं, आगे का है ओव्यूलेटरी फेज। अब यहाँ पे ओव्यूलेटरी फेज में क्या होगा, ओव्यूलेटरी फेज में हमें क्या दिखेगा, जो ओवम है, ओवम, अगेन देखिए यहाँ पे हमने एक डायग्राम निकाला। यहाँ पे ये जो 14 डे है, 14 डे पे क्या होगा, जो ओवरीज है, ओवरीज में से, ओवरीज के अंदर हमने देखा कि सेकेंडरी फेज है या फिर सेकेंडरी फॉलिकल्स है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, ग्राफियन फॉलिकल भी बोल सकते हैं। और वो ग्राफियन फॉलिकल जो है
उसके अंदर जो ओवम का डेवलपमेंट हो रहा था, अब वो ग्राफियन फॉलिकल जो है वो रप्चर हो जाएगा और उसमें से एग निकल के बाहर आ जाएगा ओवरीज से। और वो कब आएगा? आएगा 14 डे ऑफ साइकिल। साइकिल के 14वें दिन क्या आएगा? वो जो ओवम है वो निकल के उस ओवरी से निकल के बाहर आएगा। इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं कि ओव्यूलेटरी फेज, या फिर उस वक्त ओव्यूलेशन हो रहा है। और ये जो फेज है ओव्यूलेटरी फेज, इट इज द शॉर्टेस्ट फेज ऑफ द साइकिल। शॉर्टेस्ट फेज ऑफ cycle, that is lasts for only one day, and that one day is 14th day of cycle. ओके जो ये मैं बात कर रही हूँ 14 डे, वो मैंने साइकिल को कितने डेज का पकड़ा है यहाँ पे? 28 डेज का, इसलिए मैं 14 डे की बात कर रही हूँ यहाँ पे। बट अगेन अकॉर्डिंग टू फीमेल वो चेंज हो जाएगा, किसी में वो 15 पे भी होगा, किसी में वो 16 पे भी होगा, और उसे हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन विल ऑकर। अब ओव्यूलेशन होगा मतलब क्या होगा? ओव्यूलेशन विल ऑकर मीन्स दैट इज रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन follicle and giving out the ovum from the ovaries, ओवरी नॉट ओवरीज, एक ही ओवरी से आएगा वो, इसलिए मैंने ओवरी बोला, ओवरीज नहीं बोला, ओवरी। ओके, इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? ओव्यूलेशन। आगे मैं यहाँ पे हार्मोन्स कैसे काम करेंगे वो भी बोलूंगी। ओके, ये सारी चीजें किसमें देखी आपने? ओव्यूलेटरी फेज में। ओव्यूलेटरी फेज में कुछ नहीं दिखेगा, बस ओव्यूलेशन हो रहा है। और ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है कि जो ओवरी है, ओवरी के अंदर जो ग्राफियन फॉलिकल है, उस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर से क्या निकल के आ रहा है बाहर? ओवम निकल के आएगा। इस ओवम का यहाँ पे क्या है? मेन रोल है। ये ओवम यहाँ से निकल के बाहर आएगा, इसलिए हम उसे बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज। अब आगे वाला फेज देखते हैं, इसे हम क्या बोल रहे हैं? ल्यूटियल फेज, या फिर हम इसे क्या बोल रहे हैं? सिक्रेटरी फेज। इसे हम ल्यूटियल फेज या फिर सिक्रेटरी फेज के नाम से जानेंगे। अब इसे सिक्रेटरी या फिर ल्यूटियल फेज करके क्यों बोल रहे हैं हम लोग? अगेन हम पीछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे इसे हमने क्या बोला है? ये वाला फेज जो है ये लार्जेस्ट फेज ऑफ साइकिल है, और ये कब से कब तक है? 15वें दिन से 28 दिन तक होता है। 15 to 28 डेज तक ये होता है, और इसे हम ल्यूटियल फेज बोल रहे हैं। अब इस फेज में आपको नई क्या चीज दिखाई देगी कि यहाँ पे अभी ओवम जो है, ओवम आके रुका हुआ है। यहाँ पे ओवम आया हुआ है, और वो जो ओवम है वो आके, जो ओवम यहां से निकल के आया, जो ओवम यहां से निकल के बाहर आया, ये जो ओवम है ये निकल के कहां से बाहर आया है? अभी इस ओवरीज में से निकल के वो ओवम बाहर आया, फिर आगे जाके वो ओवम
यहाँ पे आने वाला है, और यहाँ पे जब वो ओवम आ जाएगा तो यहाँ पे आने के बाद अगर इस ओवम को क्या मिले, अगर इस ओवम को फर्टिलाइजेशन के लिए एक स्पर्म मिल जाए, अगर ऐसा हो कि उस ओवम को फर्टिलाइजेशन के लिए एक स्पर्म मिल जाए, तो इसका क्या होगा, बाद में जाइगोट में फॉर्मेशन हो जाएगा। और जाइगोट में फॉर्मेशन होने के बाद जब यह जाइगोट में फॉर्म हो जाएगा तो आगे जाके वापस इसमें क्या दिखेगा आपको, ये वाला जो है इसे हम बोलेंगे जाइगोट, और ये वाला जो रीजन होता है, ये वाला कौन सा होता है, एम्प्यूला। और इस रीजन में क्या होगा, ये जाइगोट जो है ये क्लीवेज प्रोसेस को अंडरगो करेगा, और क्लीवेज के बाद उसमें गैस्ट्रुला ब्लास्टुला फॉर्म होगा, फिर एम्ब्रियो फॉर्म होगा, और वो एम्ब्रियो जो है यहाँ पे आके इम्प्लांट हो जाएगा। बट अब यहाँ पे जो ल्यूटियल फेज है, इस ल्यूटियल फेज में हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि सिक्रीशन हो रहा है, सिक्रेटरी फेज है। यहाँ पे सिक्रेटरी फेज है मतलब क्या हो रहा है कि ओवम आके रुका हुआ है, ओवरी में से ओवम आ चुका है। उसके बाद देखो अब यहाँ पे दोनों जगह पे क्या क्या हुआ है ये मैं आपको बोलती हूँ वापस। देखिए अब पहले हम लोग देखते हैं यूटेरस में क्या हुआ है। ओके, ये रहा यूटेरस। ओके, और इसके साथ ही यहाँ पे हम डायरेक्टली ओवरीज निकाल देते हैं। ये रही ओवरीज, और फिर यहां से आके ये जो एम्पिलरी रीजन है ये है फिम्बरी। अगेन यहाँ पे भी वैसे ही करते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे ये जो है ये ओवरीज है, ओवरी। उसके बाद ये वाला जो रीजन है इसे हम बोलेंगे एम्प्यूला। उसके बाद ये वाला जो रीजन है अंदर का यहां तक का उसे हम बोलेंगे यूटेरस। ओके, और ये बाद में आपको यहां से बाकी वजाइना। ओके, अब यहां पे क्या होने वाला है, यहां पे जो डेवलपमेंट हुई है हम डायरेक्टली क्या करते हैं, ओके, यहाँ पे ये जो है ये सेल्स ग्रो हो रहे हैं यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि सेल्स जो है ये ज्यादातर ग्रो होते जा रहे हैं। और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि ये जो ओवम है अंदर वाला जो है वो क्या है, ओवम है। वो कैसे होता जा रहा है, वो लार्जर होगा, और बाद में यहाँ पे आके वो जो ओवम है यहाँ से निकल के बाहर आएगा, और उसे कौन ले लेगा पास में, ये ओवम जाएगा इस फिम्बरी के पास, और वहां से वो जाएगा अंदर। ओके, और इस एम्पुला रीजन में जब वो जाएगा यहां से वापस थ्रू दी वजाइना अंदर एंट्री लेगा स्पर्म,
और वो जाएगा यहाँ पे, और वो यहाँ पे इसे क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा, और यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे होगा फर्टिलाइजेशन। और अब अगर फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हुआ तो ये आगे जाके अगेन क्या करेगा, आगे वो ट्रैवल करेगा, आगे आएगा यहाँ से। फर्टिलाइजेशन के बाद इसके 2 सेल बनेंगे, 2 के 4 बनेंगे, 4 के अगेन 8, 16, 32, और आगे जाके ये बन के क्या बन के आएगा, यहाँ पे आके ये ओवम बनेगा। बट वो ओवम बनने से पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाली जो लेयर है एंडोमेट्रियम वाली, वो क्या हो चुकी है, अभी ज़्यादा मोटी हो गई है। यहाँ पे ये जो सारे सेल्स है, यहाँ पे एंडोमेट्रियम के जो सेल्स है उनकी ग्रोथ हो चुकी है। यहाँ पे ये एंडोमेट्रियम के सेल्स हैं और उनकी ग्रोथ हो चुकी है। दिखाई दे रहा है आपको ये सारा, यहाँ पे एंडोमेट्रियम है। अब ये जो एंडोमेट्रियम है, अब इसकी लेयर कैसे हो गई है, ज़्यादा मोटी हो चुकी है, क्योंकि ये प्लोरिफरेटिव फेज में ही इसकी लेयर मोटी हो गई है। ओके, और फिर यहाँ से आपको स्पर्म आते हुए दिखा था, ठीक है। अब देखते हैं, अब यहां से आके ये जो एम्ब्रियो है इसे हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रायो या एम्ब्रियो। ये जो एम्ब्रियो है यहाँ पे आके रुकेगा और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इम्प्लांटेशन। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इम्प्लांटेशन। यहाँ पे क्या होगा, इम्प्लांटेशन का प्रोसेस हो जाएगा। अब इस सिक्रेटरी फेज में क्या क्या होने जा रहा है वो भी हम एक बार देखते हैं वापस। देखिए, अब ये सारी चीजें तो हमने देखी कि यहाँ पे यूटेरस में क्या हो रहा है, यहाँ पे ओवरीज में क्या हो रहा है। अब देखते हैं वापस, इट इज द लार्जेस्ट फेज ऑफ द साइकिल। वो क्या है, लार्जेस्ट फेज है साइकिल का, लार्जेस्ट फेज। ओके, और यहाँ पे क्या होने जा रहा है, सिक्रीशन, मीन्स यहाँ पे जो ओवम है, ओवम विल travel towards ampulla. Ampulla, that is what? That is oviduct. It will travel towards the oviduct, and after that this ovum will wait there for the fertilization. Waits for fertilization. ओके, और यहाँ पे आगे जाके वो 24 आवर्स तक जो ओवम है वो क्या रहेगा, जिंदा रहेगा। ओके, ये सारी प्रोसेस कहाँ पे होगी, सेक्रेटरी फेज में हो जाएगी। गॉट इट? आपको ये चारों फेजेस समझ में आ चुके हैं अभी। अब देखते हैं वापस, देखिए अब यहाँ पे अगेन, इससे पहले मैं आपको एक बात बोलती हूँ। ओके, अब हम देखेंगे कि जो फीमेल्स है उनमें हार्मोनल कंट्रोल कैसे हो रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे जो डेवलपिंग फॉलिकल है। ओके, अब हम देखते हैं डेवलपिंग फॉलिकल जो है, ये जो डेवलपिंग फॉलिकल है
वो क्या करेगा, दे विल सीक्रेट ईस्ट्रोजन। डेवलपिंग फॉलिकल क्या सीक्रेट करेगा, ईस्ट्रोजन। वो डेवलपिंग फॉलिकल हमने कहाँ देखा था, किस स्टेज में देखा था, देखिए डेवलपिंग फॉलिकल हमने देखा था फॉलिक्यूलर फेज में। जो फॉलिकल्स थे यहाँ पे, ये फॉलिकल्स यहाँ पे क्या हो रहे थे, डेवलप हो रहे थे। और वो जो डेवलपिंग फॉलिकल्स है वो क्या करेंगे, अब यहाँ पे वो सीक्रेट करेंगे हार्मोन, कौन सा, ईस्ट्रोजन। अब यहाँ पे हम लोग हार्मोनल कंट्रोल देख रहे हैं, हार्मोनल कंट्रोल इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, तो पहली बात हमने देखा यहाँ पे ईस्ट्रोजन कहाँ से आया। अब आगे हम लोग वापस और एक बात देखते हैं। देखिए अब इस साइड में निकालती हूं। आप लोगों को पता है कि हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस क्या है, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं हाइपोथैलेमस। ओके, अब देखते हैं हाइपोथैलेमस। ये है हाइपोथैलेमस। इसे हम क्या बोलते हैं, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। इसे हम बोलते हैं मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। अब ये जो मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है ये क्या सीक्रेट करने वाला है, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो क्या सीक्रेट करेगा यहाँ पे, हाइपोथैलेमस। ये किसे, हमें पता है कि हमारे बॉडी में क्या है, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है। वो फिर किसे स्टिमुलेट करेगा, पिट्यूटरी को। और फिर वो पिट्यूटरी किसको स्टिमुलेट करेगा, आगे के सेल्स को हार्मोन सीक्रेट करने के लिए। अब ये किसे अगेन स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट्स। वो क्या करेगा यहाँ पे, स्टिम्युलेट करेगा, नहीं स्टिम्युलेट करेगा, स्टिम्युलेट्स टू हुम, किसे स्टिम्युलेट करेगा, एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस को ये क्या करेगा यहाँ पे अभी, स्टिम्युलेट करेगा। एडिनो हाइपोफाइसिस मतलब एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ये स्टिमुलेट करेगा। फिर ये एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो अब क्या करने वाली है, यहाँ पे वो GnRH, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ये इसका पता है आपको, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ओके, ये करेगा इससे स्टिमुलेट। ओके, और फिर वो जो गोनाडोट्रोफिन है वो एडिनोहाइपोफाइसिस को बोलेगा। और फिर वो जो एडिनोहाइपोफाइसिस है वो क्या सीक्रेट करने वाला है, यहाँ पे सीक्रेट्स FSH and FSH and LH,
यहाँ पे FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ओके, ये है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब इसको स्टिमुलेट करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, आपको क्या दिखेगा कि ये जो FSH है वो क्या करेगा, अभी वो स्टिमुलेट किसको करने वाला है, वो स्टिमुलेट करेगा जो फॉलिकल्स थे। ये किसे स्टिमुलेट करेगा, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। और ये जो डेवलपिंग फॉलिकल्स है वो क्या करेंगी, यहाँ पे आकर वो सिक्रेट करेंगी एस्ट्रोजन को। और ये जो डेवलपिंग फॉलिकल्स है वो किसे सिक्रेट करेंगी, एस्ट्रोजन को। ओके, वो इतना आपको समझ में आ चुका है। अब वो सिक्रेट तो करेंगी, उसके साथ ही यहाँ पे जो LH दिखाई दे रहा है आपको, ये जो LH है, ये LH अगेन क्या करने वाला है, ये जो LH है वो क्या करेगा, यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो स्टिमुलेट किसे करेगा, वापस स्टिमुलेट्स कॉर्पस ल्यूटियम। Cl मतलब कॉर्पस ल्यूटियम, वो कॉर्पस ल्यूटियम को भी स्टिमुलेट करेगा। और जब वो कॉर्पस ल्यूटियम को स्टिमुलेट करेगा, फिर वो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, वो अगन कौन से हार्मोन्स को सिक्रेट करने वाला है, वो सिक्रेट करेगा प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन और इनहिबिन। प्रोजेस्टेरॉन और इनहिबिन को वो सिक्रेट करेगा, और साथ में ईस्ट्रोजन को भी कम अमाउंट में सिक्रेट करेगा। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया आपको, वो किसे सिक्रेट करेगा। अब यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रेट करेगा, इनहिबिन को सिक्रेट करेगा और एस्ट्रोजन को सिक्रेट करेगा। और इसके ही साथ और एक बात यहाँ पे आपको दिखेगी कि ये जो डेवलपिंग फॉलिकल है, ये डेवलपिंग फॉलिकल क्या करने वाला है, ये सीक्रेट करेगा ईस्ट्रोजन को। और वो जो ईस्ट्रोजन है वो किस प्रोसेस में मदद करेगा, ओव्यूलेशन की प्रोसेस में वो उसको मदद करेगा। इतना आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। ये मैं वापस आपको बोलती हूँ, देखिए अब यहाँ पे हाइपोथैलेमस है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। और ये मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो क्या करेगा, यहाँ पे स्टिमुलेट करेगा या फिर सिक्रीट करेगा किसे, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन को सिक्रेट करेगा। फिर वो गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग जो हार्मोन है वो अगेन उसके आने के बाद वो क्या करेगा, एडिनोहाइपोफाइसिस मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसे वो क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। फिर वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो अगेन क्या करेगी, वो सिक्रेट क्या करेगी, FSH और LH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ये दोनों का सिक्रीशन हो जाएगा। अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब क्या हो रहा है, ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसका फंक्शन क्या रहेगा, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। और ये जो FSH है वो कहाँ पे काम करेगा, ये काम करेगा ओवरीज के अंदर, ओवरीज के अंदर ये काम करेगा। और उसके साथ ये डेवलप करेगा फॉलिकल्स को। और दूसरा जो हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, अब ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट किसे करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम को। कॉर्पस ल्यूटियम आपको पता है कहाँ पे फॉर्म हुआ है, कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो फॉर्म हुआ है, अगेन हम पीछे जाते हैं। ओके, मैं यहीं पे बता देती हूँ आपको। कॉर्पस ल्यूटियम देखिए, यहाँ पे ओवरी थी और यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल, यहाँ पे सेकेंडरी फॉलिकल, और उसको ही हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल,
फिर वो ग्राफियन फॉलिकल से जब एग रप्चर हो गया तो वो क्या हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम। देखिए आगे यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल, ओके। उसके बाद आगे जाकर यहाँ पे क्या आ गया, ओवम निकल गया बाहर, और फिर यहाँ पे आ गया कॉर्पस ल्यूटियम, और बाद में कॉर्पस अल्बिकन्स। अब यहाँ पे ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ये कॉर्पस ल्यूटियम, इससे कॉर्पस ल्यूटियम देखिए यहां से ओवम निकल जाएगा। ओवम निकल जाने के बाद ये जो ग्राफियन फॉलिकल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम में। और वो जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये क्या करेगा, क्या सिक्रेट करेगा, प्रोजेस्टेरॉन, इनहिबिन और एस्ट्रोजन, ये 3 हार्मोन्स को वो सिक्रेट करने वाला है। और अगेन ये जो एस्ट्रोजन और इनहिबिन है, एस्ट्रोजन और इनहिबिन मिलके वो क्या करेंगे, इनहिबिट, वो क्या इनहिबिट करेंगे, एस्ट्रोजन, ये दोनों एस्ट्रोजन और इनहिबिन मिलके अगेन वो जीएनआरएच को इनहिबिट करेंगे, इनहिबिट। वेट अ मिनट, वो क्या करेंगे, इसे इनहिबिट करेंगे ताकि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है उसका सिक्रीशन ना हो। और अगर ये सिक्रीट नहीं हुआ तो आगे जाके फॉलिकल्स की ग्रोथ भी नहीं होगी, और आगे जाके ये जो है इनहिबिन क्यों इनहिबिट कर रहा है इसे, जीएनआरएच को, क्योंकि उसे जो ओवम निकल के आया है डेवलपिंग फॉलिकल में से, वो जो ओवम है वो क्या हुआ है, अब यहाँ से ओवम निकल जाने के बाद क्या आ रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम। और अगर ये कॉर्पस ल्यूटियम ओवम के निकल जाने के बाद आया है तो इस कॉर्पस ल्यूटियम को उसे क्या करना है, यहीं पे रखना है। और ये जो आएगा ये क्या करेगा, ये क्या सिक्रेट करने वाला है, प्रोजेस्टेरॉन और इनहिबिन सिक्रेट करेगा। और ये जो इनहिबिन है वो क्या करेगा, इनहिबिट करेगा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के सिक्रीशन को। गॉट इट। और उसके बाद ये अगेन LH जो है, मतलब ये जो है LH, वो भी क्या करेगा यहाँ पे, अगेन LH जो है इसके साथ ही वो इनहिबिट स्टिमुलेट करेगा किसे, कॉर्पस ल्यूटियम को। और FSH जो है वो डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स के लिए यूज हो जाएगा। गॉट इट। ये आपको समझ में आ चुका है। इस तरह से हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कंप्लीट हुआ है। हम वापस एक बार यहाँ पे आके देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे हार्मोन्स का कंट्रोल ही यहाँ पे दिखाया गया है। अब यहाँ पे देखिए ये सारी क्या है, फेजेस ऑफ यूटेराइन साइकिल, मतलब ये सारी जो चीजें हैं इसे हम क्या बोल रहे हैं, फेजेस ऑफ यूटेराइन साइकिल। हमने यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं बोला, इसे क्या बोला है, फेजेस ऑफ यूटेराइन साइकिल बोला है। मतलब यहाँ पे फेजेस दिखाई गई है, मीन्स मतलब मेंस्ट्रुअल फेज 1 to 5 डे, उसके बाद 6 से लेकर 13 डे तक, मतलब यहाँ पे 6 है, यहाँ से लेकर 13 डे तक क्या हुआ है, प्रोलिफरेटिव फेज हुआ है। और फिर इस 14 डे पे क्या हुआ है, ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेटरी फेज। और इस ओव्यूलेटरी फेज में ओव्यूलेशन हुआ और बाद में 15 to 21 या फिर 15 to अगेन अप टू विच डे 27 डे तक या 28 डे तक सिक्रीशन हुआ है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यूटेराइन फेज है, मतलब यूटेराइन फेज में हमें क्या देखना है कि यूटेरस में क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो यहाँ पे मेंसेस में देखिए ये वाली जो यूटेराइन की वॉल थी ना, यूटेरस की जो वॉल आपने देखी, वो जो वॉल थी उसका क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियम का लेयर जो मोटा हो चुका था, ये वाला जो लेयर है जो मोटा हो चुका था, अब वो क्या हो रहा है, वापस पतला हो जाएगा, क्योंकि वहां से जो भी सेल्स हुए थे ग्रो वो सारे निकल के आने वाले हैं, वो मेंसेस में निकल के बाहर आ जाएंगे। और ये जो है निकल के बाहर आके फिर क्या होगा, 5th डे तक वो सारे निकल चुके होंगे। इसलिए देखो आपने यहाँ पे जो है, यहाँ पे ग्राफ में क्या दिख रहा है, ये जो लेयर है एंडोमेट्रियम की वो पूरी पतली हो चुकी है, वो पूरी कम हो गई है, इट इज दैट लेयर इज जनरेटेड नाउ। और उसके बाद
आगे आपको क्या दिख रहा है, 5 to 14 डे या फिर हम बोल सकते हैं 6 to 13 डे प्रोलिफरेशन हो रहा है। आगे वापस वो लेयर बढ़ती जा रही है यहाँ पे, ओके, और वो बढ़ती गई यूटेरस में, और वो आगे भी और बढ़ती गई 28 डे तक, मतलब मिनेंस के पहले, मेंस्ट्रुअल फेज के पहले तक उसने राह देखी कि कोई स्पर्म आए और उस वहां पे जो ओवम है उसे फर्टिलाइज करे। इसलिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो लेयर है एंडोमेट्रियम की वो मोटी हो चुकी है, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, यूटेराइन साइकिल। यूटेरस में ये सारी चीजें हो रही है। अब ओवेराइन हार्मोन, ओके, अगेन ओवेराइन साइकिल हम देखेंगे, ओवेराइन साइकिल के बाद हार्मोन्स देखते हैं। ओवेराइन साइकिल में क्या हो रहा है, उसी वक्त देखिए यहाँ पे प्री ओव्यूलेटरी फेज हो रहा है, ओव्यूलेशन के पहले वाला फेज जिसे हम बोल रहे हैं। और अगेन यहाँ पे प्री ओव्यूलेटरी फेज मतलब क्या हो रहा है, ये सारा ओवरीज में हो रहा है। ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन हुआ देखो 14 डे पे, उसके पहले वाला फेज था प्री ओव्यूलेटरी फेज, और यहाँ पे सारी फॉलिकल्स है, इसे हम क्या बोलते हैं दूसरे वर्ड में, फॉलिकुलर फेज, मतलब यहाँ पे फॉलिकल्स ग्रो हो रही है, 14 डे पे ओव्यूलेशन हो चुका, और ये सारी जो है ये पोस्ट ओव्यूलेटरी फेजेस है। अब यहाँ पे देखिए ओवेराइन हार्मोन्स लेवल, मतलब ओवरीज में कौन से हार्मोन्स प्रेजेंट, उनकी हार्मोन लेवल कैसी है वो दिख रहा है यहाँ पे। देखिए अब प्री ओव्यूलेटरी फेज में, या फिर हम जिसे यूटेरस में मेंस्ट्रुअल फेज या प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं, उसी को हम ओवरीज में प्री ओव्यूलेटरी फेज के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी ये जो 1 to 5 डे का 5 डे है साइकिल का, मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसे हम बोलते हैं, उसका 1 to 5 डे जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, वहां पे देखिए इस्ट्रोजन की लेवल नॉर्मल है, और इस्ट्रोजन से कम लेवल है प्रोजेस्टेरॉन की। प्रोजेस्टेरॉन कम है एज कंपेयर टू इस्ट्रोजन, और इस्ट्रोजन जो है वो कहाँ से आ रहा था, कौन सीक्रेट कर रहा था इस्ट्रोजन को, देखिए यहाँ पे इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, इसे कौन सीक्रेट कर रहा था, कॉर्पस ल्यूटियम भी सीक्रेट कर रहा था, और उसके साथ डेवलपिंग फॉलिकल्स जो थी वो भी एस्ट्रोजन को सीक्रेट करती है। यही आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो डेवलपिंग फॉलिकल है प्री ओव्यूलेटरी फेज के पहले, यहाँ पे प्रोलिफरेशन हो रहा है, मतलब यहाँ पे फॉलिकल्स डेवलप हो रही है, और वो जो फॉलिकल्स है वो डेवलप कहाँ होंगी, ओवरीज में, और ओवरीज में जो फॉलिकल्स डेवलप होती है उनका काम क्या होता है, वो क्या सीक्रेट करेंगी, इस्ट्रोजन। और जब तक ये फॉलिकल्स डेवलप होती है इस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का जो सीक्रेशन है वो आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। वो कब दिखेगा, जब कॉर्पस ल्यूटियम आएगा। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन और इस्ट्रोजन दोनों को सीक्रेट करेगा, बट वो कम अमाउंट में सीक्रेट करेगा एज कंपेयर टू डेवलपिंग फॉलिकल। डेवलपिंग फॉलिकल जो एस्ट्रोजन को सीक्रेट करता है वो ज्यादा अमाउंट में सीक्रेट करता है एज कंपेयर टू कॉर्पस ल्यूटियम। ओके, आगे देखते हैं। अभी यहाँ पे ओव्यूलेशन हो चुका है, और जिस दिन ओव्यूलेशन हुआ 14 डे पे, वहां पे भी ओव्यूलेशन के प्रोसेस को कौन हेल्प करता है, तो इस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन हेल्प करेगा, इस्ट्रोजन। और ये जो इस्ट्रोजन है ये ओव्यूलेशन के प्रोसेस को हेल्प करेगा, और साथ ही में वो ओव्यूलेशन करवाएगा। इट विल गिव आउट द ओवरीज, नॉट ओवरीज, ओवम फ्रॉम द कॉर्पस व्हाट, ग्राफियन फॉलिकल, नॉट कॉर्पस ल्यूटियम, ग्राफियन फॉलिकल। ओके, और अब ये सारी चीजें तो हो गई। उसके बाद आगे जाके पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में, कहाँ पे ये हम कहाँ देख रहे हैं अभी, ओवरीज में। यहाँ पे पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में क्या होगा, अब इस्ट्रोजन कम हो गया, इस्ट्रोजन की लेवल कम हो गई, क्योंकि इस्ट्रोजन कौन सीक्रेट कर रहा था, डेवलपिंग फॉलिकल। अब यहाँ पे फॉलिकल्स डेवलप हो रही है, नहीं हो रही है, और उसी वजह से प्रोजेस्टेरॉन का हमें लेवल हाई मिलता है यहाँ पे, कब, पोस्ट ओव्यूलेटरी स्टेज में, और इस्ट्रोजन का लेवल हमें कम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी डेवलपिंग फॉलिकल नहीं है, या फिर डेवलपिंग oocyte वहां पे नहीं मिलेगा। उस वजह से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम है और इस्ट्रोजन का लेवल कम है और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज्यादा है। और इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आगे वाला देखते हैं, गोनाडोट्रोफिन हार्मोन लेवल। अब अगेन यहाँ पे हार्मोन लेवल, जैसे कि हमने यहाँ पे देखी, सेम वैसे ही लेवल
हार्मोन्स की यहाँ पे भी होगी। फॉलिकुलर फेज में आपको क्या दिखेगा कि FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो फॉलिक्यूलर फेज में आपको कैसा दिखेगा, थोड़ा ज्यादा दिखेगा एज कंपेयर टू कौन सा हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कंपैरिजन में FSH आपको थोड़ा ज्यादा दिखेगा, क्योंकि वो क्या करेगा, FSH विल स्टिमुलेट फॉर दी ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स, इसीलिए उसका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल्स की ग्रोथ को वो स्टिमुलेट करेगा। और आगे जाके यहाँ पे LH का जो अमाउंट है वो हमें ज्यादा दिखेगा एज कंपेयर टू FSH, क्योंकि यहाँ पे फॉलिकल्स को तो स्टिमुलेट करना है नहीं अभी, क्योंकि 14 डे पे क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, जिसे हम ओव्यूलेटरी फेज बोलते हैं। और वहां पे क्या आएगा, ओवम जो है वो ग्राफियन फॉलिकल से बाहर आने वाला है, और उस वक्त यहाँ पे जो फॉलिकल्स है वो तो स्टिमुलेट नहीं होने वाली है, इसलिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल कम है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो ज्यादा है। और इसी तरह से आगे जाके वापस ल्यूटियल फेज में क्या होगा, जब ओव्यूलेशन हो चुका है, ओवम बाहर आ चुका है ओवरीज से, और उस वक्त आपको क्या दिखेगा कि LH की लेवल और FSH की लेवल दे आर समवॉट नियर टू ईच अदर, वो थोड़ा पास में ही है। इस तरह से आज हमने क्या कंप्लीट किया, यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर आपको इसके ऊपर अगेन कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछिए, ताकि मैं आपको आंसर करूंगी मेरे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो अप टू दैट टाइम हैव अ नाइस डे, बाय एंड स्टडी हार्ड। ओके, अगर कुछ समझ में ना आए तो टेंशन मत लो, यहाँ पे जो भी आपको नहीं मिलेगा या फिर जो भी आपको समझ में नहीं आएगा वापस कमेंट बॉक्स में बोलिए, और मुझे ये बताया कीजिए कि आपको मेरा जो पढ़ाना है वो समझ में आ रहा है कि नहीं, ताकि मुझे समझ में आए। जैसे आपने बोला था पहले कि आप इंग्लिश में बात मत करो और हिंदी में करो, तो अभी मैंने हिंदी में तो स्टार्ट कर दिया है, तो देखते हैं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, या फिर मैं कुछ चेंजेस करूँ आपको पढ़ाने में। ओके, तो तब तक आप खुद का ख्याल रखिए, बाय।